یہ آپ صورتحال جو آرگومنٹ آپ ادھر کرتے ہیں سیم وہ آرگومنٹ ہائی کورٹ کے اندر ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ جو ججز ہیں اور ان میں سے آپ ہائی کورٹ میں بھی آ گئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کہاں پہ کمزوری ہے؟ اور جو کہا جا رہا ہے ضد اور انا سے آگے نکلے, وہ کس کو کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, جو بھی اس نظام کے کرتے دھرتے ہیں, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے خط لکھا, جو ان پہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہے تھے, ہم انہی سے بات کر رہے ہیں اور باقی تمام سے بھی کر رہے ہیں. دیکھیں اس ملک ججز کو کہہ رہے ہیں کہ ججز فیصلہ کروانے والوں سے کہہ رہے ہیں, سب میں یہ معاملہ ہے. ججز تو بیچارے ہم سمجھتے ہیں کہ دباؤ میں ہیں, لیکن جو دباؤ ڈالنے والے ہیں ہم ان سے التجا کر رہے ہیں کہ یہ دباؤ ڈالنا ہمارے نظام پہ ختم کریں تاکہ شرافت اور آئین اور قانون کے مطابق بات ہو. دیکھیں یہ فیصلہ آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں میں, جو گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ عدالت میں بھی رکھی گئی ہیں, لیکن ان کا اس فیصلے میں ذکر نہیں ہوا, کیونکہ اگر ان کا ذکر ہو جائے تو پھر فیصلہ دینا ممکن نہیں تھا. ہم بچپن سے آپ کو سنتے, آپ ایک اعلیٰ پائے کے وکیل ہیں, آپ کے پاس کوئی وکیل بہت کم وکیل ایسے ہیں. آپ اتنی بڑی کاز القادر ٹرسٹ روحانی تعلیم کے لیے, جس طرح آپ نے ذکر کیا, تو جب ملک ریاض کا نام آتا ہے تو اس قوم کا ہر بچے کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے, قبضہ مافیا, زمینوں پہ قبضے کرنے والے. تو انہوں نے اس سے پہلے تو کوئی یونیورسٹی بنائی ہے نہ کوئی انسٹیٹیوٹ بنائے. یہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے 458 کے نام زمین آپ کو مفت میں دی, اور اس کی وجوہات کیا تھی کہ قبضہ مافیا سے ایک اتنے بڑے کاز کے لیے آپ نے قبضہ مافیا سے زمین دی, اور قبضہ مافیا نے آپ کو فری میں زمین دی جو اس سے پہلے قبضے کرتا تھا, اس کی وجہ؟ دیکھیں, اگر آپ شوکت خانم یا کسی بھی اور ٹرسٹ کو دیکھیں, جو کراچی میں ہمارے بہت سے ٹرسٹ ہیں, انڈس, آپ کو نظر آئے گا کہ اس ملک کے جو متمول لوگ ہیں وہی خیرات کرتے ہیں. ہم بھی کرتے ہیں جو ہم اتنے متمول نہیں ہیں, لیکن بڑی خیرات جو ہے وہ متمول لوگوں کی جانب سے ہی آتی ہے. اب ایک خیراتی ادارہ جو ہے وہ ہر شخص کی وہ ذاتیات یا اس کی زندگی کو نہیں پھرولتا. ایک شخص کہہ رہا ہے میں بلڈر ہوں, میں کنسٹرکٹر ہوں, میں جلدی بلڈنگ بھی بنا دوں گا, زمین بھی میں لے دیتا ہوں, تو کوئی آر نہیں تھا اس سے یہ زمین لینے میں یا بلڈنگ بنوانے میں, کیونکہ اپنی ذات کے لیے تو وہ نہیں لے رہے, وہ ایک یونیورسٹی مفاد عامہ کے لیے کام کرا رہے ہیں. کوئی بھی شخص اگر مفاد عامہ کے لیے زندگی کے کسی بھی دور میں کام کرنا چاہے تو میں تو اس کو منع نہیں کروں گا. اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے بہت پیسہ کما لیا, اب میں کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہوں, تو فبیا کرے, میں اس کا یہی جواب دوں گا. ایک سیکنڈ, بلاول ہاؤس بنانے کے لیے یہ زمین نہیں لی گئی تھی, یہ القادر ٹرسٹ کے لیے. جی اچھا, اس طرح القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ ہمارے سامنے ہے. جس نے یہ فیصلہ دیا تھا 2004 میں سپریم کورٹ نے اس کو مس کرنے کا, جی بالکل, اس سے بانی چیئرمین کو آپ لوگوں نے آگاہ نہیں کیا. کل کورٹ کمیٹی میں بھی اس حوالے سے بات ہوئی. یہ بتائیے گا کہ وجہ کیا تھی کہ بانی چیئرمین کو بتایا نہیں, پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا, پارٹی کو اس حوالے سے نہیں بتایا گیا. اور دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ آیا پاکستان سے, سے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا گیا, اس حوالے سے کوئی اسٹریٹ پاور کا بھی مظاہرہ نہیں کیا گیا. جب فیصلہ آیا تھا تو اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جو کہ وومن لیڈ بھی کرتی ہیں وہ خود وہاں پہ نہیں تھی, وہاں پہ کافی جو حکمراں تھے وہ شکوہ کر رہے تھے کہ آپ آتی لیڈ کرتی, فیصلہ آیا تھا بڑا فیصلہ احتجاج کرتی, تو اس میں ایک بڑی ایک ڈرا بیک سمجھ آ رہی ہے. نہیں دیکھیں, فیصلہ جو ہے جس طریقے سے دیا گیا, 2 دفعہ اس کو مؤخر کیا گیا, اس دن مجھے نہیں آنے دیا گیا اندر. دیکھیں پچھلے 2 سال سے میں مقدمات میں ہوں, پارٹی میں ایک میرا عہدہ بھی ہے. جب ان کا دل ہوتا ہے مجھے آنے دیتے ہیں, جب دل نہیں ہوتا نہیں آنے دیتے. تو یہ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے کہ عدالت میں کس کو رسائی ملتی ہے, کس کو رسائی نہیں ملتی. لیکن دیکھیں یہ اسٹریٹ پروٹیسٹ واحد پروٹیسٹ نہیں ہوتی. سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں پروٹیسٹ وہ ہے جو اخلاقی سطح پہ کی جائے, اور وہ ہم کر رہے ہیں آپ کے سامنے. اگر آپ کے ذہن اور آپ کی روح کو ہم چھو لیتے ہیں تو یہ سب سے بڑا مارکا ہوگا. ہم یہی کرنا چاہتے ہیں, اس کا موقع بھی آئے گا. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ بات جو ہے فکری بات ہے. ایک فیصلہ آیا ہے نا, ایک تحریر آئی ہے, اس تحریر کے جھوٹ کو ہم نے آپ کے سامنے رکھنا ہے. اس جھوٹ کو سامنے رکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ دلیل کی سطح پہ بات کی جائے. جو فیصلہ ہے اس کو آپ کے سامنے پڑھا جائے, اس کے مندرجات بیان کیے جائیں. تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. آگے اور کیا ہوگا, کس نوعیت کی پروٹیسٹ ہوگی, وہ ہم دیکھیں گے. جہاں تک میں ایک منٹ جہاں تک 2004 کا معاملہ ہے, دیکھیں یہ 2004 کا ایک فیصلہ تھا. یہ ہمارے کچھ دوستوں کے علم میں تھا, کچھ کے علم میں نہیں تھا, میرے علم میں نہیں تھا. لیکن اس کو ہم اپیل میں اب بہت زور سے اٹھائیں گے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے.
देखिए हमारे इलेक्शन ट्राइब्यूनल भी जो उन्होंने बनाए हैं, जो रिटायर्ड जजेस को इन्होंने मुकदमे दे दिए हैं, जो हमारी इलेक्शन की अपीलें थी, अब ये बात सामने आ रही है कि उनमें वो शामिल हैं लोग जो पीसीओ के जज थे, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इनकी तो अपॉइंटमेंट वॉइड एब इनिशियो है, इनको कभी जज तस्व्वुर ही नहीं किया जाएगा। चुन चुन के ऐसे लोगों को ओहदे दिए जा रहे हैं, चुन चुन के ऐसे लोगों को हमारे मुकदमे दिए जा रहे हैं जिनके बारे में हमारी आला अदालतें माजी में कह चुकी हैं कि ये अहल नहीं है कि ये अदालत में बैठें। एक तरफ का अभी कमल सदर ने भी बात की कि ये औरत कार्ड खेला जा रहा है मुख्तलिफ तरीकों से, कभी आपकी पार्टी के लीडर और कभी उनकी मिसेज के ऊपर तोहमात लगाई जाती हैं। पीटीआई के पास 45 के करीब एमएनएस इस वक्त मौजूद हैं, पार्लियामेंट मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर अदालत में क्यों नहीं जाते? प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्वीट्स करने से क्या उनकी जो देखिए अदालतें तो आपके सामने है ना, अदालतें तो इस तरह के फैसले देती हैं ना। हम 2 साल लगाएं किसी ऐसी अदालत के सामने, फिर उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएं, वो भी हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मुकदमा नहीं करते, तौहीन का वो या हद तक का वो मुकदमा होता है। लेकिन असल बात यह है कि हमने आपके सामने शराफत का जो मुकदमा है वो पेश करना है, माशरे को इन अक़दार को अपनाना है, इन अक़दार की नफ़ी करने वालों को बुरा समझना है। जी कमल। जी मैं ATC इस्लामाबाद में थी, क्योंकि जितने नाजायज़ किस्म के झूठे इस वक्त केसेस बनाए जा रहे हैं, तो कभी हम एक अदालत में होते हैं, कभी दूसरी अदालत में होते हैं। जिस वक्त ये फैसले का टाइम था उस वक्त हम अपनी जमानतें जो हैं वो ATC इस्लामाबाद से कंफर्म करवा रहे थे। आप लॉयर हैं, आप आइन और कानून की बात करते हैं, इसके लिए हमें लड़ते भी नजर आते हैं, स्ट्रगल करते नजर आते हैं। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा कि आपकी जमात का चेयरमैन बैकडोर राब्ते कर रहा है आर्मी चीफ के साथ, मुलाकात की भी बात गश्त है शहरी इक़्तिदार में, तो आपका क्या नजरिया है कि आप जिन लोगों ने आपकी गवर्नमेंट गिराई, मुख्तलिफ मामला आपके साथ हो रहे हैं, तो क्या आर्मी चीफ साहब के साथ मुलाकात करनी चाहिए आपको बैकडोर हो गई, या हुकूमत के साथ मुलाकात करनी चाहिए? इन दोनों सतहों पे मुलाकात होनी चाहिए। देखिए हम मुज़ाकराती कमेटी की सतह पे हुकूमत के साथ मुलाकात कर रही हैं, लेकिन ये हमेशा आप देखेंगे जब भी मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं इस मुल्क में जो असल ताकत का सरचश्मा है, जो अवाम होने चाहिए, वो नहीं है। तो जो लोग इक़्तिदार के पीछे खड़े हैं, इक़्तिदार में नज़र आने वाली जमातों के पुश्तपनाह हैं, यकीनन उनसे भी बात हम करेंगे, इसमें कोई आर नहीं है, ये एक मुल्क की हकीकत है। हम ये समझते हैं कि उनका रोल नहीं होना चाहिए, हमारा आइन और कानून इसकी इजाज़त नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद एक हकीकत है, एक ज़मीनी हकीकत है कि उनका रोल है। एजेंसियाँ मौजूद हैं, हमारे लोग अगवा भी होते हैं, हम मुश्किल का सामना करते हैं, तो हम हर सतह पे गुफ्तगू करेंगे। सर जब मामला हाई कोर्ट में पहुंचा है, केस खत्म हुआ है, लेकिन साथ ही हुकूमत एक और केस जो दायर कर देती है और ट्रायल कोर्ट के अंदर दोबारा फिर से मामला शुरू हो जाता है, जिसके बाद खान साहब जो है दोबारा फिर से उनके जेल के अंदर दुरानियाँ हैं बढ़ जाता है। तो अब आपको क्या लगता है कि इस केस के बाद खान साहब बाहर आ सकेंगे, या हुकूमत की जानिब से मजीद कोई केस जो है वो दायर कर दिया जाएगा और खान साहब को दुरानियाँ? देखिए आप ठीक कह रही हैं, झूठे मुकदमे बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं। मेरे ऊपर 18 फौजदारी मुकदमे जो हैं पिछले 1 महीने में बन चुके हैं। रोज़ मैं उठता हूं, मुझे पता चलता है मैंने कहीं आग लगा दी है, मैंने कहीं हमला कर दिया है, तो ये तो होता रहता है, ठीक है, होगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हम इन मुकदमों का सामना करते रहेंगे और फैसला अवाम करेगी। कि जब अवाम की ताकत खड़ी हो जाती है तो इस किस्म के बॉन्डे जो मुकदमे हैं, जो बॉन्डे फैसले हैं, उनकी तारीख में कोई हकीकत नहीं रहती, कोई अहमियत नहीं रहती। आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लंदन में कहा गया कि ये पैसा रियासती पाकिस्तान की अमानत है, उनको वापस जाना है। तो अगर आप वज़ीर खजाना होते तो ये पैसा तो पाकिस्तान के कौमी खजाने। जी मैंने ये अर्ज किया, नहीं मैंने अर्ज किया सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट किसने दिया? जी मैंने यही तो सारा अर्ज करके आपको बताया कि ऐसा नहीं हुआ। बरतानिया में जो फैसला है हाई कोर्ट का, उसने हवाला दिया है उस बाहमी मायदे का जो अली मलिक और नेशनल क्राइम एजेंसी यूके के दरमियान हुआ। उस मायदे में ये लिखा हुआ है कि ये पैसा जो हमने फ्रीज किया है, इसको हम डी फ्रीज कर रहे हैं ताकि इसको सुप्रीम कोर्ट के इस अकाउंट में डाला जाए जो बहरिया टाउन की ज़मीन की अदायगी के लिए खोला गया है। ये उस मायदे में लिखा हुआ है। जी आप, मैंने ट्विटर पे लगा दी है वो जजमेंट इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट की, उसका पैरा 45 और 84 जाके पढ़िए। उन्होंने उसमें उस मायदे का हवाला दिया और का मायदा हुआ ही ये था, उसका हुकूमत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये बिल्कुल एक गलत बयानिया है कि वहाँ से पैसा जो है ख़जाने के लिए भेजा गया था और यहाँ काबीना ने उस अकाउंट में भेज दिया। बिल्कुल ये बेबुनियाद और लग़्व बयानिया है। बताइएगा 145 की जो जजमेंट है वो उसमें भी लिखा गया है फैसले के अंदर जो बरतानवी अदालत का फैसला है वो नासिर जवेद राना साहब की अदालत में क्यों नहीं रखा गया,
उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि एक जो जज जिसको अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया, ये दोनों स्टोरी सहाफियों ने अब ब्रेक की है जी। तो बुकला ने क्या पहले ये जो बरतानवी अदालत का फैसला है ये अदालत के सामने नहीं रखा, काजी फाइज ईसा की अदालत में ये केस चलता रहा, उन्होंने भी जो पैराग्राफ लिखा है उसको भी हिस्सा बनाया गया, तो ये पहले लीगल टीम ने इस पर काम क्यों नहीं किया? हमारा फिर ऐसे इसको देख लें कि अगर हुक्म ये था कि सुप्रीम कोर्ट में पैसे जाने हैं, हुक्म नहीं, मायदा था। मायदा ये था कि सुप्रीम कोर्ट में पैसे जाने हैं। अब ये कह रहे हैं कि कौमी खजाने में गलत कह रहे हैं, मायदा पढ़ें। खजाने में जाएं या सुप्रीम कोर्ट में एक ही बात है, देखिए करप्शन कहाँ पे हुई? कोई करप्शन नहीं हो। देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप एक लम्हे के लिए भूल जाएं कि बरतानिया में मायदा क्या था, बरतानिया की अदालत ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसा डालना कोई बहरिया टाउन या मलिक रियाज की जेब में पैसा डालना तो नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है ना। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना था कि ये पैसा हम किसको दें, और उन्होंने फैसला कर दिया। 23 नवंबर 2023 को फैसला करके उन्होंने पैसा नहीं डाला, मलीर को नहीं दिया, डेवलपमेंट अथॉरिटी को, उन्होंने रियासत को दे दिया और सिंध हुकूमत को दे दिया। तो ये कभी भी ये पैसा मलिक रियाज या बहरिया टाउन की जेब में नहीं गया था, बरतानिया से आकर सुप्रीम कोर्ट की तहवील में था। ये कहना कि जी हमने या काबीना ने ये पैसा मलिक रियाज की जेब में डाल दिया, बिल्कुल गलत बात है। जेल में डाला होता तो आज 94 अरब रुपया कैसे रियासत को मुंतकिल हुआ होता। पाकिस्तान में सियासी क़यादत को माइनस करने के लिए मुकदमात होते रहे माजी में भी, चाहे वो अल्ताफ हुसैन की तरह हो या नवाज शरीफ की तरह, जिस तरह आप भी हाई प्रोफाइल केसेस करते रहे। इस दौरान आप कह रहे थे मुझे जेल जाने नहीं दिया गया, अलकादिर ट्रस्ट का जिस दिन फैसला होना था। हाँ जी, इस सारे मंजरनामे में अगर देखें पाकिस्तान के तारीख के तनाजुर में, तो आप ये क्या समझते हैं कि पीटीआई में से भी एस्टेब्लिशमेंट को कोई खालिद मकबूल, अवाम को या एस्टेब्लिशमेंट को कोई खालिद मकबूल सिद्दीकी या शायद खान नून लीग से जैसे मिले, तो ऐसे मिलेंगे? नहीं, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल एक मुत्तहिद जमात है। हमारा कायद कौन है वो बिल्कुल वाज़ेह है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस जमात का कोई और ब्लॉक बने, अगर आपका ये हवाला है, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। और अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है तो उसकी कोई वक़्त, कोई हकीकत नहीं होगी।